know independent and dependent variables? Yes, sir. Okay. For example, we have perceived organizational support. In a very simple words, for example, we all are in education, okay, and we have this perception that our faculty, our top management, whenever we are in need, they are going to help us. This is known as our perceived organizational support. Okay, whenever you have support, now what is the effect of this support on you? If you have got the support, what is the effect? Good results. For example, academic performance. Academic performance is going to increase or decrease? Increase. So we have placed the sign of increase. Okay. Similarly, the second variable is school climate. School climate. For example, the climate of this school, business school, or you can say education school, etc., is very good, very conducive for learning, for students, for faculty members also. So definitely, the academic performance of the student are also going to increase. The third very important thing, for example, respect. All respect mechanisms. If you believe that the respect mechanism is also there, definitely the academic performance will also increase. So my question is, how many independent variables we have? Three independent variables? Yes. With your permission, may I write down independent variables over here? And how many dependent variables we have? One. Okay? So this is known as 3+1 model. Is it okay? Yes. This is known as 3+1 model. This type of model is very much acceptable by your supervisors in universities at undergraduate level only. But surprisingly, just between you and me only, surprisingly, in universities, especially in MPhil and PhD level, our students in education department, they are using this kind of 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 model for their MPhil level education. This is quite acceptable as long as you are contributing in the existing body of knowledge. But the main question arises, this is known as first generation model. ठीक है? फर्स्ट जनरेशन 1995 में ये सब चीजें करते थे, 1995 में, ठीक है? अब देख ले, अब वेन एवर यू कैन सी दिस काइंड ऑफ मॉडलिंग, ठीक है, दिस काइंड ऑफ मॉडलिंग, ठीक है? 3+1 मीन्स दिस इज योर सुपरवाइजर लैंग्वेज. व्हाट इज योर मॉडल? 3+1, 4+1. आप कहते हैं रिलैक्स. 3+1 का मतलब क्या है? 3 लिखे +1 मीन्स प्लस के इस तरफ क्या है? IV, प्लस के राइट साइड पर DV. तो इन दिस मॉडल हाउ मेनी IVs विल बी? 3 एंड हाउ मेनी DV वुड बी देयर? 1. 3+1 वेरी सिंपल मॉडल. जब इस तरह के मॉडल हो, स्ट्रेट अवे आंख बंद करके आप एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस. दैट्स व्हाई इन एजुकेशन मल्टीपल रिग्रेशन इज द मोस्ट फेवरेट स्टैटिस्टिकल टेक्निक. नहीं करते? एवरीबॉडी रिग्रेशन. व्हाई रिग्रेशन? We don't know why regression. रूल याद रखें, रिग्रेशन सिर्फ उस वक्त होगा जब प्लस के बाद 1 हो. When you have only 1 DV, रिग्रेशन. ठीक है? हमेशा इस चीज को बांध लें अपने बाजन में. Whenever you have 1 DV, your outcome will be, your result statistical technique will be Multiple regression. regression analysis. Simple words में regression. चलो अब let me ask this very simple question. For example, I am here, ठीक है? I'm here, I'm a student, you all are my examiners. Okay? Assuming that you all are my examiners, okay? I'm simply a student, ठीक है? Sir, my model is this one, and I would like to use regression analysis. Your first question would be, Why you are using this? why regression? Why regression? Because we have one outcome. ठीक है? What is my outcome? Academic performance. ठीक है? इस पूरी डायग्राम के रिसर्च क्वेश्चन कितने होंगे? 3. आउटकम कितने? तो क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन एक है, उसके कंपोनेंट 3 है. रिमेंबर, हाउ मेनी आउटकम? 1. ठीक है? द मेन क्वेश्चन आपके जहन में चल रहा है, हाउ टू इंक्रीज द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है? यू गॉन थ्रू सम लिटरेचर रिव्यू and you try to identify, to extract some independent variables. एक आपने यूज कर लिया perceive organizational support, ठीक है? सेकंड वन आपने यूज लिया स्कूल क्लाइमेट,
थर्ड वन आपने यूज कर लिया रिस्पेक्ट मैकेनिज्म। ये तीन चीजें होंगी क्लासरूम के अंदर। मैं एक टीचर हूं, मेरी तरफ से सपोर्ट होगी, बच्चा एकेडमिकली परफॉर्म करेगा। मेरी तरफ से रेस्पेक्ट बच्चे को दी जाएगी, इंसल्टिंग नहीं होगी। बच्चे ने मिस्टेक भी की है फिर भी उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, शाबाश शाबाश। तो बच्चा क्या होगा, एकेडमिकली परफॉर्म करेगा। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी काफी पॉजिटिव होगा। सिर्फ ये नहीं कि हमारी क्लास का पॉजिटिव है, बाहर निकले तो बाहर कोई नहीं पढ़ रहा, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू इनके इनकलकेट दीज काइंड ऑफ साइनॉप्सिस इन देयर। एनीवे, सो ये तीन चीजें हो गई। अब जैसे ही आपने ये प्रेजेंट करना शुरू किया, ठीक है, आपके एग्जामिनर ने कहा बेटा आई एम नॉट कन्विंस्ड विद योर मॉडल इज इनकरेक्ट। और ये हो गया, व्हाई इज दैट सो? अब गौर से देखिएगा, ये तमाम चीजें होती हैं तो बच्चा डायरेक्टली एकेडमिकली परफॉर्म करता है। सोचे स्टेप्स बाय स्टेप, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड देन पीएचडी। आपने मैट्रिक इंटर के बाद डायरेक्ट पीएचडी लिखा है, गौर से देखें। जब ये तमाम चीजें होती हैं तो बच्चा जो अपनी क्लासरूम की स्टडीज में इंगेज होता है। कुछ लोग ये कह सकते हैं पहले मोटिवेट होगा, देन इंगेज होगा, देन परफॉर्म करेगा। नहीं गॉट इट, डायरेक्ट परफॉर्मेंस तो होती नहीं। ये तमाम चीजें तो सबके लिए, क्या सब परफॉर्म कर रहे हैं? क्या सीबीएम के आईबीएम के अंदर तमाम बच्चों का जीपीए 4 आउट ऑफ 4 आता है? नहीं, बट दीज थिंग्स आर अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। नहीं गॉट द आइडिया? सो सबसे पहले ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, आप ये कहेंगे सर एक्चुअली सिचुएशन ये है, परसीव ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, देन स्कूल क्लाइमेट, देन रिस्पेक्ट मैकेनिज्म, ये तमाम चीजें होंगी तो क्या होगा, बच्चा काम में इंगेज होगा। और जब बच्चा काम में इंगेज होगा तब एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी। ठीक है? नहीं गॉट द आइडिया? इंगेज होगा तो परफॉर्म करेगा ना। तो आपने कहा सर अभी तो गड़बड़ हो गई, अब आउटकम कितने? नहीं, ये तो अल्टीमेट आउटकम है। अब डीवी कितने हो गए? डीवी की पहचान याद रखें, हमेशा याद रखिएगा, जब भी एरो हेड की तरफ ये एरो हेड जा रहा, कोई भी ऐसा बॉक्स जिसकी तरफ एरो हेड जा रहा, ये आपका डीवी। इस डायग्राम में गौर से देखें, क्या इसके पीछे कोई एरो हेड है? तो ये डीवी नहीं होगा। क्या इसके पीछे एरो हेड है? नहीं। एनी एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड रेस्पेक्ट? नो। एनी एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड एपी? यस, ये डीवी। इस मॉडल में एनी एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स पीओएस? एससी? दिस वन? नो। दिस वन? यस, एक। दिस वन? यस। तो इसका मतलब ये कि इस मॉडल के अंदर दो आउटकम, दो डीवी आ रहे हैं। इसका मतलब अब रिग्रेशन नहीं चलेगा, क्योंकि रिग्रेशन का रूल क्या है, ओनली वन डीवी। यहां पे कितने हो गए? 2। तो इसका मतलब मैं जाऊं, इजाजत दे मुझे, जाऊं छुट्टी? मेरी मैडम ने, मेरे टीचर ने तो जिंदगी भर रिग्रेशन पढ़ाया, रिग्रेशन पढ़ लो एमफिल पास। सुभाष ने कहा नहीं, वो तो होता ही नहीं। मॉडल तो ये होना चाहिए। आपकी इजाजत से मार्कर यूज कर लें? चले जी, बताए कितने आईवी हो गए? 3। इसी की तरह अब कितने हो गए? ना 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 ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर 2 का मतलब है, अगर 2 का मतलब है, इसका मतलब ये चीज यहां पर है 1 प्लस 1। अब फंस गए, अब रिग्रेशन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, रिग्रेशन से काम नहीं चलेगा। तो अब क्या करना होगा, अब आपको दूसरी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। आपके सामने, ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। ठीक है, आज से 7-8 साल पहले दिस यूज्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टेक्निक। Nowadays this is extremely easy to understand, extremely easy. Ajay please, extremely easy to understand. You understand the point? Now the first question arises, why SAM? Because there are two dependent variables. When we have one outcome or when we have more than one outcome? Yes, बताइए। more than one more than one हो गए? Yes. पक्का? अच्छा, this is a very important question in your viva at MPhil level or PhD level. Why you have applied SAM? Why not multiple regression? Because in SAM we have this kind of model. This is known as second generation model. This was first generation, this was second generation. Nowadays we are working on second generation model. सेकेंड जनरेशन मॉडल के 74 मॉडल्स बनते हैं, नोट कर लीजिएगा। आइए प्लीज,
ठीक है, हाउ मेनी मॉडल, 74 मॉडलिंग होती है, 70, यानी कि 74 डिफरेंट मेथड से यू कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ डायग्राम. दैट्स व्हाई सेकंड जनरेशन इज आल्सो नोन एज अ कॉम्प्लेक्स मॉडल. Although this is not complex in its present form, but this may turn out to be a very complex. Okay, वो इंशाल्लाह किसी और सिटिंग में मैं आपको all 74 मॉडल दिखाऊंगा. नहीं got the idea? तो first question is why we are using SAM? Why not Regression. regression? हम क्यों यूज नहीं करते? क्यों? Because we have only one. अब ये चीज मैं आपको डियर स्टूडेंट प्रूव करके दिखाता हूँ कि रिग्रेशन यूज करेंगे, 2 डीवी रखेंगे, सिस्टम इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट. अभी तो मैंने वर्बली आपको बता दिया ना, अब मैं प्रैक्टिकली स्क्रीन पर प्रूव करता हूँ. जस्ट ऑब्जर्व व्हाट एग्जैक्टली वी आर प्रूविंग, दैट we are trying to focus, we are trying to emphasize multiple regression and we are going to provide 2 outcome. अगर सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो शाहनवाज साहब गलत कह रहे हैं, और सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया तो शाहनवाज साहब सही कह रहे हैं. नहीं गॉट द आइडिया? मल्टीपल रिग्रेशन 2 डीवी. इसके लिए सिंपली वी आर गोइंग टू यूज अ सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज SPSS. चलो ये पता है. अल्लाह का शुक्र. You will be surprised to know that in Viva sometime we ask this question, what is the name of this software? Student get heart attack. Oh my God, सर ये तो हमारी मैडम ने बताया नहीं था. अच्छा, इसका नाम क्या है? सर SPSS. किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? IBM. ये तो आपने बता दिया ना. अच्छा, जब आपने IBM बता दिया तो फैकल्टी मेंबर्स थोड़ा सा वो एंजॉय करते हैं. अच्छा, IBM का ओरिजिनल नाम बता, तंग करने के लिए. इसको परेशान ना हो, ठीक है. अच्छा, हमेशा याद रखें, मैं जब भी थीसिस ये क्लासेस लेता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ, वाइवा जो है ना इज ए टेक्निक है, याद रखें. सामने वाले जो लोग हैं एग्जामिनर्स, इनका काम है आपको गिराना, आपका काम है न गिरना. नहीं गॉट द आइडिया? ठीक है, आप कैसे नहीं गिरेंगे, हमेशा याद रखें डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ कॉन्फिडेंस. पूरी दुनिया में 2 ही तरीके हैं जिनसे आपको कॉन्फिडेंस आता है. नंबर 1 आपके लिबास से, इसीलिए कहा जाता है वाइवा के अंदर यू शुड बी प्रेजेंटेबल. नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. सबसे पहले द वे यू कंपोज योर सेल्फ, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डेप्थ ऑफ नॉलेज. ठीक है, अभी देखिए ना आपके सामने, स्ट्रेट अवे आई माइट हैव पास टू द टॉपिक. मैं आगे नहीं गया, मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं ये प्रूव करता हूं आपको कि मल्टीपल रिग्रेशन में 2 डीवीज क्यों नहीं चलते. सॉफ्टवेयर को देखते हैं. ये सॉफ्टवेयर मैंने अप्लाई किया, सॉफ्टवेयर का एक स्टेप्स है. अपने एमफिल पीएचडी थीसिस में याद रखें, इस पूरे सॉफ्टवेयर में 2 ऐसे मेन्यूज हैं जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं. व्हाट आर दीज 2 मेन्यूज? नोट कर लें. नंबर 1 एनालाइज, नंबर 2 ट्रांसफॉर्म. बस ये 2 100% सबसे ज्यादा यूज करते हैं. तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन, ये देखिए एनालाइज रिग्रेशन लीनियर, मैंने क्लिक कर दिया. ये लिखा हुआ डिपेंडेंट और ये लिखा हुआ इंडिपेंडेंट. ठीक है, हमारा यही केस है ना कि डिपेंडेंट में मल्टीपल आउटकम हमें लेकर जाना है. ठीक है, अब मैं एक डालता हूं डिपेंडेंट में. दीज आर माई लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू क्लिक ओवर हेयर, ठीक है, हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेकेंड वन. नहीं, बट दिस इज द प्रूफ कि मल्टीपल रिग्रेशन में सिर्फ एक डीवी जाता है. ठीक है, इफ यू हैव मल्टीपल डीवी तो ये आपका मॉडल नहीं चल सकता. चलो जी, अब इसका मतलब ये बात खत्म हो गई. अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव a bit different scenario. ये क्रिस्टल क्लियर हो गया मल्टीपल रिग्रेशन. नाउ वी आर वर्किंग ऑन सैम. सैम में किस तरह से काम करते हैं वो मैं आपको जल्दी से आपको बता देता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1 वेरिएबल. जो भी वेरिएबल्स है, नंबर 1 CE, नंबर 2 PS, नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल H. ये 3 वेरिएबल हम रख लेते हैं. एक वेरिएबल हम रख लेते हैं AC का. ठीक है, और यहां से एक वेरिएबल देखते हैं हमारे पास कौन सा अवेलेबल है. ये डेटा सेट डोंट वरी, मैं आपसे शेयर कर लूंगा. ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है. CPD रख लेते हैं. चलें, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक छोटा सा मॉडल हो गया. CE, PS एंड H, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. बीच में एक वेरिएबल है AC
जो भी वेरिएबल्स है इससे हमारा ताल्लुक नहीं अभी, मतलब वेरिएबल्स के नाम है। एंड देन सीपीडी हमारा मेन आउटकम हो गया। विच स्टैटिस्टिकल टेक्निक? सैम, SEM। अब देखिए कितने 2 से 3 मिनट में वी हैव लर्न दिस थिंग। डायग्राम को देख के स्टैटिस्टिकल टेक्निक का पता चल सकता है। By looking at the diagram, you can easily identify which statistical technique you need to use. They got the idea? Yes, sir. Exactly in the same manner, by looking at the statistical techniques, you may perceive which type of diagram you would be working on. Yes, you know? आपकी diagram at least इस तरह। अच्छा जी, इस तरह के diagram हो गए। जल्दी से बताएं total number of arrowheads we have. 1, 2, 3 and 4. जितने arrowhead उतने hypothesis. कैसे? Easy हो गए? For example, sequence में this will be my H1, H2, H3 And H4. कितना easy है? In statistical life there is no concept of null and alternate. ये सब बिगिनिंग क्लासेस में बच्चों को सिखाते हैं। एक नल होता है, उसी को उल्टा करके लिख दो तो ऑल्टरनेट होता है। ये सब बिगिनिंग क्लासेस में। इन थीसिस लाइफ में यू ओनली राइट डाउन वन हाइपोथेसिस, दैट इज ऑल्टरनेट वन, जो नीचे वाला होता है, जिसको हम कुछ लोग इसको H1 भी कहते हैं, कुछ लोग इसको HA भी कहते हैं। ऑल्टरनेट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई पूरी स्टोरी? हाउ मेनी हाइपोथेसिस वी हैव? नाउ व्हाट टू डू? Right hypothesis. लिख लेते हैं हाइपोथेसिस। इज इट डिफिकल्ट? इज इट डिफिकल्ट? कैसे लिखते हैं हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस लिखने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, दो आईवीज। यस या नो? पहले हाइपोथेसिस, फर्स्ट हाइपोथेसिस कनेक्ट हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 कनेक्ट करते हैं। कैसे लिखते हैं हाइपोथेसिस? इसको जल्दी से मैं बता देता हूं। चले, H1 आ जाए। ओके, हाइपोथेसिस ये नजर आ रहा है विजिबल? इज इट विजिबल टू? ठीक है, H1। अब हमारे पास डायग्राम में मुझे देख के बताए, ओनली फोकस ऑन H1, ओनली फोकस ऑन H1। H1 कनेक्ट्स टू वेरिएबल CE एंड AC। बस ध्यान में ये दो वेरिएबल्स हो। CE will have a significant effect on AC। फुल स्टॉप, हो गया हाइपोथेसिस। Is it a challenge? Is it a challenge? This is the easiest thing. और हमारे एमफिल पीएचडी के बच्चे, उनको हार्ट अटैक हो जाता है, सर हाइपोथेसिस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चले अब जल्दी से मुझे H2 बता दें। Sir, H2 PS and AC. PS एंड AC. AC, बताइए कैसे लिखेंगे? PS will have a significant effect on AC. on AC. On AC. ओ सॉरी, ऑन AC है, हाँ ऑन AC। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा टाइम सेविंग के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे जल्दी से H3 बता दें क्या होगा? H. H and AC. H. सिर्फ H. H है, जी अब ये ठीक हो गया? जी सर। अच्छा अब मुझे बता दें H4 क्या होगा? सर AC and CPD. अब यहाँ से CPD. ये AC और CPD. CPD। Yes, how many arrowheads we have? 4. How many statements we have? 4 हो गए। चले अब ये स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा। स्टैटिस्टिकल टेक्निक का नाम देख के मॉडल पहचान सकते हैं। By looking at the model, you can identify the statistical technique to be used or applied. Yes. Similarly, डायग्राम को देख के स्टेटमेंट बना सकते हैं। Yes. स्टेटमेंट्स को देख के डायग्राम बना सकते हैं। ये है पीएचडी का क्वेश्चन। सही। नहीं गॉट द आइडिया? वो ये कहते हैं बेटा डायग्राम को देख के स्टेटमेंट तो बनाते हैं। आपके टीचर्स भी आपको पीएचडी में ये देंगे, ठीक है? वो कहेंगे स्टेटमेंट दे दिया, ये डायग्राम बना दो। बना सकते हैं? इज इट इजी? सबसे पहले देखिए आउटकम कितने, ऑन एसी, ऑन एसी, ऑन एसी। इसका मतलब क्या है? एसी एक होगा और 3 वेरिएबल्स, 3 स्टेटमेंट है वो एसी पे जा रहे होंगे। और फिर नेक्स्ट देखें एसी किस पे एरर जा रहा है? CPD। इज इट इजी टू डेवलप दिस डायग्राम? यस सर। इसको आप खेलें इसके साथ। नहीं गॉट दिया? ठीक है, चले
अब डियर स्टूडेंट मुझे जल्दी से बता दें, इस पूरी डायग्राम में कहीं मैंने मेंशन किया है कि पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव होगा? नहीं, मजा नहीं आया, और से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा वेरिएबल्स है जो यहाँ लिखा हुआ है, और ये वेरिएबल्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। यस, और से देखिएगा, बोथ वेरिएबल्स एट द सेम टाइम सेम डायरेक्शन। व्हाट डज इट मीन? क्लास में टीचर स्टूडेंट को इज्जत देंगे, बच्चा मोटिवेट होगा। एग्री और डिसएग्री? बोथ वेरिएबल एट द सेम टाइम सेम डायरेक्शन, Yes, sir. दिस इज नोन एज पॉजिटिव इफेक्ट, दिस इज नोन एज पॉजिटिव। अब ये क्या है? बोथ वेरिएबल एट द सेम टाइम सेम डायरेक्शन, Positive. स्टिल पॉजिटिव, दैट्स द की पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वगैरह जी। मैथमेटिक्स में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टैट्स में कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, अब और से देखिएगा, व्हाट डज इट मीन? Positive. हाउ डू वी नो? बोथ वेरिएबल्स IV and DV at the same time in the same direction, this is positive, this one Positive. बस ये सिखाना है। अब ये क्या है? ये नेगेटिव Negative. How do you know? एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। Directions are changed. Any example? क्लास में बदतमीजी, insulting behavior from faculty, student academic performance will decline, yes or no? Yes. ये क्या है? Again negative, both variable at the same time different position। अब और से मुझे जल्दी से बताइएगा। Positive. 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 Negative. Negative. न्यूट्रल No effect। ठीक है, तो my question is, did I mention any direction over here? In statement number 1, did I mention any direction? और से देख के बताएं, did I mention any direction? Yes. डायरेक्शन जब भी नहीं, डायरेक्शन जब भी कहेंगे इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। डिड आई मेंशन? कहाँ लिखा हुआ है? मैं तो कहा इफेक्ट होगा। डिड आई मेंशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नहीं लिखा हुआ है। डिड आई मेंशन एनी डायरेक्शन? नो, पक्का? दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। कैसा? Same. Sir, it is not necessary to mention either its positive effect or negative. It entirely depends on your literature review. If the literature review gives you a confirmed picture, yes, effect होगा, number one, and it is also evident in the literature कि positive ही होगा, then you should be writing down will have a positive effect. So now this statement is known as Non-directional. non-directional. अब इसी चीज को हम डायरेक्शनल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? Only in statement number 1. Where is my cursor? अब देखिए, फर्स्ट कोई मैं दोबारा लिख रहा हूं। H1 कैसे लिखूंगा? CE will Have a positive. Positive. positive effect on AC। अब बताएं, ये जो फर्स्ट वन है, दिस इज नोन एज Non-directional. Non-directional. नॉन डायरेक्शनल hypothesis. And what about this one? Directional. I got the idea. So every hypothesis or each hypothesis may be written down in one of the two ways. Non-directional means no direction, directional, directional. I got the idea. Yes, sir. इनके दो और नाम हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे, चाहे तो नोट कर लें। नॉन डायरेक्शनल इज ऑल्सो नोन एज टू टेल हाइपोथेसिस एंड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मींस वन टेल हाइपोथेसिस। ये जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कशन करेंगे तो मैं प्रूव करूंगा कि इसको टू टेल या वन टेल क्यों कहते हैं। अभी सब चाहे तो नोट कर लें, ठीक है? डन। तो एट द मोमेंट वी आर गोइंग टू टेस्ट विच हाइपोथेसिस। अब गौर से देख लीजिएगा। CE विल हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन AC, H1 वुड बी, याद रखिएगा, ठीक है? PS will have a significant effect on AC, H will have a significant effect on AC। मैंने कोशिश की है कि वेरिएबल का नाम बहुत ही इजी रखूं ताकि, ठीक है? Similarly, AC will have a significant effect on CPT। How many arrowheads would be there? 4। How many statements? 4. बात खत्म हो गई। ये हमारी आज की क्लास का 1 बजे तक का ऑब्जेक्टिव है। हमें ये चेक करना है हमने सोचा क्या है। मैं देखिए, सिंपल सी बात है, घर में बहन की शादी करनी है, किसी का रिश्ता आएगा मुंह उठा के कर देंगे? नहीं, क्यों? कर दो, कर देना भाई, क्यों नहीं करते? चीजें चेक करेंगे। चीजें चेक करेंगे। तो आपका पहली assumption क्या होगी? लड़का, शरीफ है ये। हाँ, खैर शरीफ का पता तो शायद शरीफ का तो बाद में पता चलता है। एनीवे, चले, आप पहले उसका कैरेक्टर देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड। नंबर 3 Education. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं देख रहे आप एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम। भाई। जेब देखेंगे ना भाई, सब कुछ सही है, लेकिन आप अपने बच्चे को तो जानते हैं ना कैसी ब्रॉटअप किया है आपने, ठीक है? वो गरीब की शादी कर तो वो भी परेशान। anyway,
सो आपकी एक एजम्पशन होती है, एजम्पशन ये होती है कि लड़का हमारी बहन की इज्जत करेगा, लड़के हमारी इज्जत भी करेगा, ठीक है, लड़की हमारी खुश रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब क्या है, सोच रहे हैं आप। अब आपने डेटा लिया, ठीक है, ये डेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये तमाम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये डेटा आपके सामने अवेलेबल है। यस, कितना डेटा है हमारे पास, हर आदमी से हमने एक एक डेटा लिया है, तो कितनी लाइंस है हमारे पास, जल्दी से एंड पे चले जाते हैं। वी हैव सफिशिएंट डेटा, ये देख लें, नहीं 350 को, ये देखें टोटल लाइंस कितनी है, 334। तो सबसे पहले जब भी डेटा सेट पे काम करते हैं हमेशा उसका डेटा नोट करते हैं। तो हम कहाँ पे नोट करेंगे, कहीं पे भी नोट कर लें, डेटा को शो करते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एन मीन सैंपल साइज, ठीक है, दैट इज 334, ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा चले, और अब हम क्या करते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, ठीक है। ये चीज आप जिसमें यूज करेंगे उसमें दुनिया के मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं। उस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स का एमफिल पीएचडी लेवल पर मोस्ट फेवरेट सॉफ्टवेयर है एंड इंतहाई इजी टू ऑपरेट। कैसे, अभी आप देखिएगा, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज स्मार्ट पीएलएस, नोट कर लें, दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज स्मार्ट पीएलएस, ठीक है, स्मार्ट पीएलएस, भूलिएगा नहीं, दिस इज वेरी वेरी इजी, यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट आल्सो, गो टू स्मार्ट पीएलएस, गूगल पे जाके लिखिए स्मार्ट पीएलएस डाउनलोड कर लें। देखिए उसके दो एडिशन अवेलेबल हैं, स्टूडेंट एडिशन और प्रोफेशनल एडिशन। स्टूडेंट एडिशन में क्या होता है, लाइफ टाइम बस सैंपल साइज मस्ट बी लेस देन 100, ठीक है। इंस्टॉल कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ठीक ठाक, ठीक है। इन केस इफ यू वुड लाइक टू इंस्टॉल द प्रोफेशनल एडिशन वो भी कर लें, लेकिन वो 1 मंथ के लिए होता है, ठीक है। जब 1 महीना आप कर लें, ठीक है, लैपटॉप को हमारे पास लेके आइएगा, हम एक दरूद पढ़ेंगे, फू करेंगे, वो जिंदगी भर के लिए चल जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। वो टेक्निक मैं आपको बता भी दूंगा। वो टेक्निक कुछ भी नहीं होती, 1 महीना जैसे ही एक्सपायर हो जाए सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करें, जैसे ही स्टार्ट करें माउस आपका पॉइंटर यहाँ पर होना चाहिए, जैसे ये स्क्रीन अपीयर हो इस पर क्लिक करके छोड़ दें, ठीक है। लेट द एरर कम अपीयर्स, ये बताइएगा नहीं किसी को, ठीक है, आपस में बात। जैसे एरर टर्म आएगा, ठीक है, एरर टर्म को ऊपर से क्रॉस करना है, ओके नहीं प्रेस करना है, जैसे ही ओके प्रेस करेंगे जिंदगी भर ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे खैर उनको मसला नहीं है। एनीवे अब देखिए स्टूडेंट, करना क्या है, हमारे पास एक नया थीसिस है, नया थीसिस मींस न्यू प्रोजेक्ट, ये हमारे पास एक डायग्राम है, हाइपोथेसिस हम लिख चुके हैं और हमें उसको टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट के लिए हमने सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया, इसके लिए वी नीड टू डेवलप न्यू थीसिस मींस न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट को कोई नाम भी होगा, हम क्या नाम देंगे इसका, मैंने इसका नाम दिया IOBM रख दिया, ठीक है, आप अपना रेलेवेंट नाम दे दीजिएगा। Whenever you are going to create a project, ये देखिए प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, इसके अंदर कौन से 2 ऑप्शन आ गए आपके पास, एक पे लिखा हुआ है डबल क्लिक टू इंपोर्ट डेटा एंड द सेकंड वन इज IOBM, ठीक है। अच्छा सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट कर लें, ठीक है, डबल क्लिक मैं करूंगा, ये मैंने एक डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है आपके पास, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। Whenever you see this kind of screen, समझिए डेटा प्रॉपर्ली लोड हो चुका है, और दूसरा ये कि ये ग्रीन कलर का एक सिग्नल बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं गॉट द आइडिया, बस ये चीज बन गई आपकी। अब आपके पास जितनी भी हम काम करेंगे यहाँ पर टैब बनना शुरू हो जाएंगे, ओके, हर काम का एक टैब होगा, इसको फिलहाल हम बंद कर रहे हैं। आपने कहा कि सर ओहो ये तो गलती हो गई, आई नीड टू हैव द सेम टैब, ओके, दोबारा क्लिक कर दें, दोबारा आ जाएगा, तो ये तो जब चाहेंगे आपका आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स करना क्या है, स्टेप नंबर 1, यू नीड टू डेवलप द सेम डायग्राम ओवर देयर एंड रन, खत्म। यू नीड टू डेवलप द सेम डायग्राम ओवर हेयर, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस डायग्राम, ये स्क्रीन आ गई, इसको हम फिलहाल बंद कर रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वेरिएबल, CE, ये देखिए CE के तमाम वेरिएबल्स को यहाँ शिफ्ट करके आप डाउनलोड करें, क्लिक करें, यहाँ मूव करें, छोड़ दें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया, इसको हम राइट क्लिक करके रीनेम कर लेंगे। व्हाट इज द नेम ऑन आवर डायग्राम, हमने यहाँ CE लिख के ओके कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट डज इट मीन, CE एक वेरिएबल्स है और उसको हमने 5 स्टेटमेंट से पूछा,
लीकेड स्केल आइटम जो होता है सही 5 स्टेटमेंट से पूछा हुआ, ठीक है। चले सेकंड वेरिएबल ऑन आवर स्क्रीन PS PS। PS के तमाम आइटम्स को मूव फैमिली यहाँ कर दिया, राइट क्लिक, रीनेम PS, हो गया। जी सर चले जी, अब एक एक करके यहाँ पर आते जाए। अब मुझे एक एक डायग्राम, सर आप एक काम करें, आप आ जाए, थर्ड वेरिएबल आप बना दें H। इनसे मैंने रिक्वेस्ट क्यों की है, बिकॉज दिस इज अ ट्रेनिंग वर्कशॉप। अ वर्कशॉप मीन्स, Yes. ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस हो जाए। व्हाट एग्जैक्टली शी इज डूइंग नाउ, शी इज प्रिपेयरिंग H वेरिएबल, रीनेम, व्हाट शुड बी द नेम, सर H H। अब मुझे बताएं, ये बिल्कुल मैंने वही डायग्राम बना ली, थोड़ा सा मैं इसको रीशेप कर देता हूं, ठीक है, हो गया। चल अब बीच में क्या है, बीच में सर AC AC है। AC सर एक काम करें, आप ट्राई करें, AC आप लेके आए, कोशिश करें। इसी तो हमारे पास जितने होते हैं हाँ ऑल AC, ऑल AC, हाँ तमाम स्टेटमेंट्स को लेकर, शाबाश। अब इस पर राइट क्लिक करें, रेड पर राइट क्लिक, रीनेम, इसका नाम क्या होना चाहिए, AC लिख दें बस। हाँ। हो गया, ओके प्रेस कर दें। चले ठीक है, आप आ जाए सर जी, आप नेक्स्ट वेरिएबल आप बना दें। थैंक यू सर। आप CPD है, तो चीज में 4 सवा क्वेश्चन पूछ रहा सर आपसे ना, वो कौन सा वो हो गई कुछ ना पूछ रहा है, नाम का होगा नहीं होगा, अच्छा। ये होगा। होगा, चल बन गया। इज इट डिफिकल्ट, इतना आसान है। चल ओके, हमारे पास स्मार्ट PLS पे हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अपनी आसानी के लिए ये येलो बॉक्सेस को ख़त्म कर दूं, थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूं, ताकि हमारी जो डायग्राम है एज इट इज़ हमें नज़र आ जाए, ठीक है। मैं थोड़ा सा अब इसको ही कर दूं ताकि सबको नज़र आ जाए। नाउ इज इट ओके, चले मैं राइट क्लिक करके ये हाइड का बटन प्रेस कर रहा हूं, ताकि हमें इजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में। सेम तरह ही बन जाए। बिल्कुल वही एग्जैक्टली इस तरह से बन जाए। ये चीज़ें हो गई, यस सर देख लें। 3+1+1 का मॉडल स्क्रीन पर है। यस सर ऑल वेरिएबल्स आर देयर ऑन द राइट पोजीशन। ऐसा ना हो कि CPD हमारी डायग्राम में यहाँ हो, हमने उसको वहाँ कर दिया। चेक कर लें, बिल्कुल हो गया। यस सर अब इस डायग्राम में इस डायग्राम में एक डिफरेंस है, एरोस समथिंग इज मिसिंग, दैट इज एरोहेड। कहीं लिखा हुआ है एरोहेड, ऊपर से देखें, कनेक्ट कनेक्ट एरोहेड का साइन बना हुआ है। यस बस आप कनेक्ट पे क्लिक कर दें, क्लिक। सबसे पहले IV पे लेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे और ड्रॉप कर देंगे। क्या ये एरोहेड बन गया, यस सर ये भी बन गया, यस ये भी बन गया। यस सर अब मैजिक देखिएगा, ब्लू ब्लू, ब्लू मीन्स डायग्राम बिल्कुल ओके है, रेडी फॉर रन। आप रेडी फॉर रन, आप रन कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए अब दोबारा आप इसको ये क्लिक कर दें, हो गया। ये है स्टेप नंबर 1। दिस डायग्राम इज नोन एज environment model ये नोट कर लें। तो व्हाट इज स्टेप नंबर 1, यू नीड टू डेवलप अ मेजरमेंट मॉडल, ठीक है। चलें अब मेजरमेंट मॉडल के अंदर क्या करते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड में। डायग्राम बन गई, डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करते हैं, सिंपली क्लिक ऑन, ये लिखा हुआ है कैलकुलेट, जी सर क्लिक ऑन कैलकुलेट। जो सबसे पहला ऑप्शन है इस पे क्लिक करते हैं, नोट कर लें इसको, स्मार्ट PLS एल्गोरिथम, ठीक है, PLS एल्गोरिथम क्लिक करेंगे। स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट कैलकुलेशन, ये लिखा हुआ है सबसे लास्ट पर, इस पे क्लिक कर दें। अब आप गौर से देखिए क्या था, इनिशियली यू हैव दिस स्क्रीन, यस सर दिस इज योर डायग्राम, यस
यस. नाउ अनदर टैब अपीयर्स, दिस वन. इसके अंदर नीचे बहुत सारी चीज अवेलेबल है, जिस पे क्लिक करेंगे उसका टेबल विल अपीयर एट द टॉप. सारे हो गए एकदम. सर एक्सक्यूज मी सर, लास्ट स्टेप दोबारा बता दें. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, वंस यू हैव डेवलप योर मॉडल, मेक श्योर all variables as shown in your diagram exactly appear over here. ठीक है. जब ये तमाम चीजें हो जाएं, सिंपली क्लिक ऑन कैलकुलेट एंड ऑप्शन नंबर 1 नोट कर लें, PLS एल्गोरिथम. PLS एल्गोरिथम. ठीक है, डन. क्लिक ओवर हियर. कुछ नहीं करना है, सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट कैलकुलेशन. देख लें, वो करने के बाद सिंपली स्टार्ट कैलकुलेशन. इज इट इजी? ठीक है, स्टार्ट कैलकुलेशन करेंगे. करने के बाद क्या होगा? अनदर टैब अपीयर्स विद अ नंबर ऑफ थिंग्स. इज वेरी इजी. दिस स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन. मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं आपके लिए. ये देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं, दीज आर ऑल रिजल्ट्स. ठीक है. हाउ मच टाइम इट टुक टू हैव दीज रिजल्ट्स? 2 or 3 seconds. विद इन सेकेंड्स. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस नोन एज स्मार्ट. ठीक है, ये तमाम चीजें अवेलेबल हैं. Remember, software is giving you a number of things. Not everything will be reported in your thesis or research paper. ठीक है, 2 या 4 चीजें होती हैं जिस पे हम क्लिक करेंगे उसका टेबल ऊपर अपीयर होगा. ठीक है. प्रीवियस वर्जन में क्या होता था? ये तमाम चीजें यहां पर होती थी, जिस पे क्लिक करते थे उसके राइट साइड पे अपीयर होता था. नाउ ये इसके ऊपर है. बस इतनी सी बात है. कौन कौन सी चीजें चेक करते हैं? सबसे पहले हम जाएंगे इस वाले टेबल पर. ये लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. इस पे हम क्लिक करते हैं. ठीक है. जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसका टेबल आपके सामने अपीयर हो जाएगा. इन दिस टेबल यू विल सी ऑल द वेरिएबल्स. चेक करें, यही वो वेरिएबल्स हैं जो हमारे पास थे. AC, CE, CPD, H and PS. यही वेरिएबल्स थे स्क्रीन पर. यस या नो? Yes. PS है? Yes. PS है ना? Yes. PS कहाँ है? अच्छा, PS है. ठीक है, बिल्कुल सही है, भूल गया था मैं. अच्छा, अब these are the list of variables we have. Yes, sir. Column 1, column 2, column 3, column 4. The software is giving you everything. You need to identify which thing we need to report. Right side से 2 columns only reported. Right side से दोनों कॉलम. दोनों का नाम नोट कर लें. एक का नाम है कंपोजिट रिलायबिलिटी, दैट इज कंपोजिट रिलायबिलिटी, शॉर्ट में हम कहते हैं CR. And the second thing is AVE, average variance extracted. ठीक हो गया. यही दोनों चीजें मैंने यहां पे जल्दी से ये टाइप कर दी है. एक चीज है कंपोजिट रिलायबिलिटी और एक है एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड. CR की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 0.70 और इसकी वैल्यू लिख लें, दैट इज ग्रेटर देन 0.5. ठीक है. CR की वैल्यू चेक करें, 0.7 से ऊपर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ये CE की वैल्यू अगर CR चेक करेंगे तो कितनी होनी चाहिए? 0.7 से ऊपर. इसकी भी CR 0.7 से ऊपर, इसकी भी CR 0.7 से ऊपर, 0.7 से ऊपर, 0.7 से ऊपर. AV की वैल्यू कितने से ऊपर होनी चाहिए? 0.5. तो इसका AV 0.5 से ऊपर, 0.5 से ऊपर, 0.5 से ऊपर, 0.5 से ऊपर, 0.5. ठीक हो गया. कितना आसान है. अब देखते हैं. अब सॉफ्टवेयर इज डिजाइन इन सच अ वे, इफ द वैल्यूज आर ओके इट विल अपीयर इन ग्रीन कलर. इफ द वेरिएबल्स आर नॉट ओके दे विल अपीयर इन रेड कलर. हो गया. अब स्क्रीन पर देख लें. ये देखिए, सबसे पहला वेरिएबल देखें, दैट इज AC. AC हमारा बीच वाला वेरिएबल है. Yes, sir. यस. इसकी कौन सी वैल्यूज देखेंगे? इस कॉलम को देखेंगे, इग्नोर. इस कॉलम को देखेंगे, इग्नोर. जब थीसिस में जाएंगे सुपरवाइजर आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाई वी आर इग्नोरिंग दीज कॉलम्स. ठीक है, ऐसी जबरदस्ती नहीं है, मैं बता रहा हूं. इस कॉलम में देखें, इस कॉलम की तमाम वैल्यूज 0.7 से ऊपर है. Okay. यस या नो? Yes. इसका मतलब ये तमाम वेरिएबल हमारा रिलायबल है, स्टैटिस्टिकल रिलायबल. ठीक है, बिकॉज ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0.7. ठीक है. चले, अब ये इस पे ओके हो गया. अब AV देखें, फर्स्ट वेरिएबल 0.5 से ऊपर है. नहीं. इसका मतलब क्या ये मॉडल हमारा ओके है अभी? नहीं, रिलायबल तो है, Reliable तो है. ये वैलिडिटी है. ठीक है, क्या वैलिड भी है? 0.5 से ऊपर है? नहीं. व्हाट टू डू? कुछ करेंगे, जाके देखते हैं. किस वेरिएबल पे हम काम कर रहे हैं?
AC पे, AC की AV की करंट वैल्यू कॉपी पे नोट करें, सर 0.449 नोट कर लिया आपने? यस सर ठीक है, AC की AV की करंट वैल्यू क्या है? 0.449। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आई एम गोइंग बैक टू द मॉडल। इन तमाम वेरिएबल में किस वेरिएबल पे काम कर रहे हैं? AC पे। AC पे राइट क्लिक करेंगे और इसको शो करेंगे। यही तमाम वेरिएबल्स थे। जी सर ठीक है, अब यहाँ पे इतनी छोटी सी वैल्यूज है ना, हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, नजर आ रही है आपको या नहीं आ रही? आ रही है। मैं आपको दोबारा जरा सा इसको अब बताएं। यस विजिबल नाउ इट इज विजिबल। यस सर इनमें से देखिए कौन सी वैल्यू है जो सबसे छोटी है? फर्स्ट वन 0.6, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.6। फर्स्ट वन यस सर ये किसके साथ है? AC1 AC1 को माइनस कर दें, डिलीट कर दें, मॉडल विल बी इम्प्रूव्ड। अब समझा किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं? सही है नहीं बात समझ में आई। किस वेरिएबल पे फोकस कर रहे थे? AC पर। AC की AV की वैल्यू क्या थी? 0.449 थी। इज इट इक्वल टू 0.5 और उससे अबव? नहीं। इसका मतलब कुछ करेंगे, AC पे फोकस किया। एक ही में AC में देखा कि AC के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो कौन सा फैमिली मेंबर है जो सबसे ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा है? दैट इज 0.4 किसके साथ कनेक्टेड है? AC1 हमें कैसे पता? मैं इसको AC को थोड़ा सा हटा रहा हूं। इज इट द सेम वैल्यू? यस सर ना इसको क्लिक करें, कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करें। अब और से देखें वो कहां गया? खत्म हो गया। व्हाई इज दैट सो? व्हाई इज दैट सो? क्योंकि वो बिकॉज यू चेंज योर मॉडल, बिकॉज यू हैव चेंज योर मॉडल। पहले मॉडल में AC1 था, जी सर अभी है नो चेंज हो गया, यस दैट्स व्हाई रिजल्ट्स खत्म हो गए। यू नीड टू रीकैलकुलेट, देन यू नीड टू क्लिक ऑन कैलकुलेट अगेन, फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट कैलकुलेशन। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन। अब बताइए। ओके ठीक, अब नोट कर लें AC की नई वैल्यू AVE की कितनी हो गई? 0.527। इससे ये बात भी कंफर्म हो गई कि एक आइटम को रिमूव करने से AV इंक्रीज होता है। अभी देख लिया आपने, AC1 को रिमूव किया है, वैल्यू 0.44 से इंक्रीज होके 0.52 हो गई, जो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा सर फॉर एग्जांपल हम 2-3 वहां से जो है डिलीट कर रहे थे पर फिर भी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि एक दफा प्रैक्टिस कर रहे थे उसके अंदर ऐसे हो रहा था तो क्या वो पूरा डिलीट मतलब जो हमारा IB है उसको तो नहीं डिलीट करेंगे ना? एक एक करके वेरिएबल को रिमूव करेंगे। इसकी ब्यूटी भी ये है कि अगर एक आइटम भी रह गया तब भी चल जाएगा। सही ठीक है, दूसरे सॉफ्टवेयर में ये पॉसिबल नहीं है। उसमें कहते हैं 3 इंडिकेटर रूल, यानी एवरी बॉक्स मस्ट हैव एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स, मस्ट हैव रिटेन्ड। ठीक है, चलिए इफेक्ट तो पड़ेगा 100%। जिस चीज हम कर रहे हैं रिमूव कर दे एक बार में निकाल दे रिसर्च से हाँ, उसके यूजर ने नहीं ये आगे तो उसका ये एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म होती है कि स्मार्ट PLS के अंदर जब आइटम्स को हम रिमूव कर रहे होते हैं तो थीसिस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ, एक दो आइटम ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आइटम्स हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चनियर सही नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट वेरिएबल हमारा क्या है? CE ओके है, यस सर बोथ वेरिएबल्स आर ओके। यस सर चले नेक्स्ट वेरिएबल CPD। एक चीज ठीक है, एक चीज सही नहीं है। व्हाट टू डू? सेम प्रोसेस। जी सर किस वेरिएबल पे फोकस कर रहे हैं? CPD पे। अब थोड़ा मैं क्विकली करूंगा, आप जरा देखिएगा। दिस इज माय CPD, यस सर राइट क्लिक शो। इसको मैं जरा राइट साइड पे कर देता हूं, ये मैंने तमाम को राइट पे कर दिया। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बता दें किस आइटम को आपको रिमूव करना है। .7%, दिस वन, ये कौन सा वाला है? CPD 1। देखिए, ठीक है, कंफर्म। इस तरह साइड पे करके चेक कर लिया कीजिए। डिलीट हो गया, रिकैलकुलेट, इश्यू रिजॉल्व, यस सर देखा हो गया। CPD ओके हो गया। यस सर यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अभी देखें 5 से 10 मिनट में हम ये काम कर रहे हैं। जब आप क्लास में कर रहे होंगे तो कितना टाइम होगा हमारे पास एक एक चीज में, तो इसमें घबराने की बात। नाउ H इज ओके नो, लेकिन H की वैल्यू 0.45 है। हो सकता है H में हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो लेट्स सी वेयर इज माय H। ये रहा H। ठीक है, H को हम शो कर लेते हैं। अब जल्दी से H पे बता दें, किस पे फोकस करें? सभी 0.6 हैं। अब 0.6 पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? सर लास्ट वन H6 नहीं, ये देखें 618 है ना 618, 672। अब क्या करें? उसको डिलीट करेंगे अच्छा, लेकिन इससे मसला सॉल्व होगा नहीं अभी, देखिएगा, क्योंकि सभी 0.6 में है ना।
इशू रिजॉल्व? नो नहीं। अब क्या करें? अगेन एच। अब किसको करें? विच वन? 0.7, 0.7, 0.6, अब इन तीन पे फैसला करें। दिस वन? यस सर चले नाउ। अब बताइए इशू रिजॉल्व? नो। इसका मतलब ये है कि एच के वेरिएबल को आपने प्रॉपर्ली मेजर नहीं किया था। चलिए अभी देखें 0.62, 0.618 रिमूव। यस सर ओके बट स्टिल मेजर प्रॉब्लम 0.3 वेरी लो पीएस। यस चलो पीएस में कोशिश कर लेते हैं। अब इसका काम हमारे पास हो गया। पीएस शो, पीएस में देखें 0.2, 0.4, 0.5, 0.4 ये 3-4 वेरिएबल जाएंगे तो कुछ काम होगा। ठीक है, सबसे पहले 0.2 को रिमूव करते हैं। यू अंडरस्टैंड दी स्टेप्स? यस सर इज इट इजी और डिफिकल्ट? इजी वेरी इजी आई वुड से। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। किस पे आप काम कर रहे थे? नहीं सीपीटी हो चुका है। हम किस पे? पीएस पे काम कर रहे थे ना। यहाँ पीएस के कॉलम पे देख लें 0.5, 0.3 ओहो 4 और 5 दोनों को हम एक साथ रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, 4 एंड 6 को 4 एंड ये 6 है ना, 5 तो कर दिया, 4 एंड 6 को एक साथ रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ये है 4 रिमूव 6 रिमूव। ठीक है, अब देखें ऑल सेट। ठीक है, ये है स्टेप नंबर 1। हमने क्या किया? वी डेवलप द मॉडल। मॉडल करने के बाद कैलकुलेटेड समथिंग। सीआर की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.7, एवी की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.5। जब आप थीसिस में जाएंगे हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि ये वैल्यूज आती कैसे। एक को करके दिखाऊं जल्दी से? यस या नो? किसी एक वेरिएबल को ले लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? एसी। ठीक है, एसी कहाँ है हमारे पास? ये। ठीक है, और मैं जल्दी से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। एसी, ये तमाम वैल्यूज को मैं एक्सेल में पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, AC2 की क्या वैल्यू है? सिर्फ वैल्यू बता दें। 0.618, 618। नेक्स्ट वैल्यू 0.794, 0.794। नेक्स्ट वैल्यू 0.842, 824। ऐसे ही है 824, 0.648। वैल्यू चेक कर लें। 618, 794, 618, 794, 824, देन 648। 648 हो गया। ये एग्जैक्ट हमारी वैल्यूज हो गई। ठीक है, ये मैं इसको एक नीचे कर, चले ठीक है। चले अब मुझे इस वैल्यू का डबल कर दें। क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर करें, कैसे करते हैं? इक्वल टू प्रेस करेंगे, स्क्रीन पे कर लेते हैं। दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, स्क्वायर हो गया। ये तमाम वैल्यू 3 डेसिमल पे है ना, तो मैंने इसको 3 पे भी कर लिया। यहां से मैंने इसको डैग कर लिया। ठीक है, हो गया। ये तमाम वैल्यूज हो गई। इनका एवरेज कितना होगा? कॉपी पे लिखें, कॉपी पे लिखें। 0.528 लिख लिया कॉपी पे। किस वेरिएबल का? ये कौन सा वेरिएबल था हमारे पास? एसी। यस, एसी का ये लिखा हुआ वैल्यू। यस या नो? ठीक है, तो ये सब चीजें, ये तमाम वैल्यूज इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा चले, तो स्टेप नंबर हमने कर लिया, तमाम चीजें हो गई। इसके बाद लास्ट चीज हम चेक करते हैं जिसको हम कहते हैं FLC। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। लास्ट चीज चेक करेंगे FLC। ठीक है, CR हमने चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, आउटर रीडिंग चेक कर लिया, FLC चेक करेंगे। ठीक है, FLC के अंदर ये कंप्लीट टेबल है। इस टेबल में कुछ नहीं देखना, वेरी इजी थिंग्स। ये डायगोनल की वैल्यूज जो है ना बड़ी होनी चाहिए। ऐसे ही है, चेक करें 0.727 और ये तमाम वैल्यूज इनसे छोटी है। ये बड़ी है और ये सब छोटी है। सिमिलरली दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ऑल दीज 3, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ऑल दिस, एंड दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस वन। यू हैव चेक्ड इन कॉलम। अब इसी चीज को रॉज में चेक करें। विच वन?
अब इसको चेक करें, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ऑल ऑफ दिस वैल्यूज, ऐसा ही है, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन Yes. ऑल ऑफ दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, और इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं। तो इन अदर वर्ड्स कैन वी से दैट डायगोनल वैल्यूज आर ग्रेटर देन ऑफ डायगोनल वैल्यूज। इसका मतलब क्या है? द कंक्लूजन इज नोट कर लें, डिस्क्रिमिनेंट, CRI, एक छोटा सा ये फर्स्ट कीवर्ड है दैट आई एम यूजिंग। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ये आपका स्टेप नंबर 1 फिनिश हो गया। सबसे पहले आपने क्या चेक किया? आपके जितने मॉडल में कितने वेरिएबल्स हैं? यू हैव 1 2 3 4 एंड 5, ऑल 5 वेरिएबल्स आर नाउ वैलिड एज वेल एज रिलायबल। हो गए? वंस यू हैव चेक, देखो ना, आप एक एम्प्लॉय को जॉब देते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने मुझे आज जॉब दी है अपनी यूनिवर्सिटी में, डायरेक्टली मुझे डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे? नहीं, पहले एक प्रोबेशन पे रखते हैं चेक करने के लिए कि मैं रिलायबल हूँ, वैलिड हूँ या नहीं, और उसके बाद फिर आप आगे मामला चलाते। तो इसलिए स्टेप नंबर 1 में आपने तमाम चीज़ें चेक कर ली। इसका मतलब क्या है? ओके, एक और तरीका है चेक करने का, वो ये लिखा हुआ है HTMT, दिस टेबल इज ऑल्सो अवेलेबल, ये लिखा हुआ है, ऑल वैल्यूज आर इन ग्रीन कलर, इट मीन ओके देयर आर 2 मेथड्स टू असेस डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ठीक है, ये लेटेस्ट मेथड है, 2015 का मेथड है, और ये जो मेथड आपने देखा था ये 1981 का मेथड है, स्टिल वैलिड। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन इन PhD। 1981 का मेथड है, 2024 में एग्जैक्टली एप्लीकेबल एंड वैलिड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, एक ऐसी कंट्रीब्यूशन हो जो आज तक वैलिड हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको आई थिंक टाइप भी कर दिया है, ये लिखा हुआ। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी अगर काफी दफा ना प्रूव नहीं क्यों हो, बिल्कुल मैं बताऊँ, ये बीच में एक टेबल होता है, हम कहते हैं क्रॉस लोडिंग्स। इस टेबल की मदद से हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला वेरिएबल अपने घर में होना चाहिए, अगर ये किसी और जगह भी हेवली लोड हो रहा है तो इस आइटम को माइनस करें, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये क्रॉस लोडिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, डन हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे? आपने मॉडल डेवलप करके चेक कर लिया, उसके बाद अब क्या करना है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तमाम चीज़ें हो गई, आप इस पर क्लिक कर दें। इन तमाम रिजल्ट्स को आप सेव भी अगर करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दें। कहाँ है? इस पर क्लिक करेंगे पहले, रिजल्ट्स पे, ये लिखा हुआ है एक्सपोर्ट टू एक्सेल। ये जितने भी टेबल्स हैं आपके पास, ये सब एमएस एक्सेल में सेव हो जाएंगे 1 सेकंड। ठीक है, बस ये हो गया आपके पास। लास्ट स्टेप, यू नीड टू क्लिक ऑन कैलकुलेट। फर्स्ट वन पे हमने काम कर लिया था, अब बूट स्ट्रैपिंग पे क्लिक है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या है? सिंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये समझ लें। क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम 5000 जो लिटरेचर रिव्यू में गिवन है, यहाँ पे कंप्लीट बूट स्ट्रैपिंग और कर। अब ये कर क्या रहा है आपके लिए? आपका सैंपल साइज क्या था? यहाँ पे ये 334। ये आपके 334 को मेमोरी में 5000 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, इट इज टेकिंग सम टाइम। ठीक है, अब मुझे बताएं, अब इस पूरे रिजल्ट्स को मैं कॉपी कर रहा हूं, एक्सेल में जाके यहां पे पेस्ट कर रहा हूं और थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, मैं अननेसेसरी कॉलम को फिलहाल हाइड कर रहा हूं, कीप इट सिंपल। ठीक है, इसका नाम मैं रख रहा हूं, व्हाट वाज योर फर्स्ट हाइपोथेसिस? सी का इंपैक्ट किस पर होगा? AC पर। चेक कीजिए, इनमें से कौन सी लाइन है जो एग्जैक्टली यही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं? दिस वन, AC पे। क्या ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट है? यस। हमें कैसे पता? हमेशा याद रखें 0.05 से छोटी वैल्यू। ठीक है, ये सब वैल्यूज 0.05 से छोटी, इसका मतलब क्या है? ऑल वेरिएबल्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट। ठीक है, और ये इसका इफेक्ट की वैल्यू लिखते किस तरह से है? हाउ टू राइट डाउन ऑन योर स्क्रीन। आप देखिए, ये जो डियर स्टूडेंट्स जो डायग्राम हमने बनाई थी, वी डेवलप दिस डायग्राम इन चैप्टर नंबर 2। थीसिस के चैप्टर नंबर 2 में डायग्राम बन गए, फिर डेटा कलेक्ट किया। चैप्टर नंबर 4 में वी अप्लाई डिफरेंट टेस्ट और रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। अब मुझे बताएं, इस हाइपोथेसिस में आपने सोचा क्या था? CE
will have a significant effect on AC. क्या significant effect है? Yes. How much? 0 नहीं और जरा से देखें CE नहीं CE का AC पे कहाँ लिखा हुआ है? लाइन नंबर 20 पे देखें. 20 पे बिल्कुल. The value is 0.401. Is it significant? Yes, 0.5 less. 0.5 से लेस है? Yes. बस एक स्टार लगाते हैं. स्टार का मतलब है सिग्निफिकेंट. कुछ लोग क्या करते हैं स्टार नहीं लगाते. मैं वही बता देता हूँ. 2 भी होता है 3 भी होता है. ठीक है उसके आगे वैल्यू लिख देते हैं 0.000. ठीक है. सही है. व्हाट अबाउट दिस हाइपोथेसिस? पीएस का इफेक्ट क्या है एसी पर? 22. 0.108 Yes. और ये क्या है 0.034. 0.034 अगेन दिस इज सिग्निफिकेंट क्योंकि 0.05 से छोटी है. 0.05 0.04 0.03. व्हाट अबाउट एच? 0.179. Yes, sir. 0.179 और इसकी वैल्यू 0.001. 0.001. ये भी सिग्निफिकेंट हाईली सिग्निफिकेंट. इसी तरीके से ये वाली वैल्यू 90. AC वाली 0.504 और दिस इज 0.000. तो आपने सोचा क्या था कि AC will have a significant effect on CBT and what is the result? Yes. Yes. तो hypothesis is supported. सही. Hypothesis is Support. supported. Thesis finished. Thank you very much. Less than बोला था 0.5. हाँ ये तमाम वैल्यूज जो हैं all of these values Actually, it's like about CPF का ICU 0.04 पर हो. वो ये वाला 0.5. नहीं ये एस्टिमेट है. ये इफेक्ट है इसका कि इस वेरिएबल का इस पे इतना इफेक्ट है. क्या ये इफेक्ट देखिए ये अंडरस्टैंड कर लें. इस वेरिएबल का इस वेरिएबल पे ये इफेक्ट है मैग्नीट्यूड. क्या ये मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट है या नहीं? तो सिग्निफिकेंस का फैसला इस कॉलम से होता है. ये इसका एस्टिमेट है. ठीक है. यानी फॉर एग्जांपल हम लोग एक फैमिली में रहते हैं. यहाँ हमारी अम्मी बैठी हुई है. हम सब लोग जॉब करते हैं और महीने के एंड पे हम लोग पैसे लाके अम्मी को देते हैं. ठीक है. ये इन्होंने अम्मी को 20,000 लाके दिया. ठीक है. तो क्या ये 20,000 अम्मी के लिए मीनिंगफुल है पर मंथ? हो सकता है नहीं हो सकता है कराची में रहते हैं. अम्मी ने कहा भाई 20,000 चलो ठीक है ओके मान लेते हैं. ठीक है कर लेते हैं. आपने 1 लाख रुपए अम्मी के हाथ में रख दिए. तो अमाउंट कितना रखा आपने? 1 लाख. क्या ये 1 लाख अम्मी की नजर में सिग्निफिकेंट है? होगा. इन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए. इन्होंने 10 लाख रुपए रखे. इन्होंने 25,000 रख दिए. ठीक है. तो हम लोग क्या रख रहे हैं? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. यस. फर्स्ट ने 50,000 रुपए रख दिए. इन्होंने 40,000. इन्होंने 17,000. इन्होंने 10,000 फॉर एग्जाम्पल. क्या ये मीनिंगफुल है या अम्मी के? ये नहीं है. तो इससे पता चलता है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है. नहीं गॉट द आइडिया. तो हमने 4 हाइपोथेसिस बनाए हुए थे. 4 हाइपोथेसिस हमने चेक कर लिया. ठीक है. इसकी 1-2 चीजें और आप रिपोर्ट करते हैं. वो जब थीसिस में आएंगे इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे. पी वैल्यू अगर माइनस में आ रही है. पी वैल्यू हमेशा प्लस में होती है. एक दफा अभी मैं कर रहा था उसके अंदर माइनस में आई हुई है. इस वजह से आपसे पी वैल्यू माइनस में टी आई होगी. टी वैल्यू आ सकती है. दिखाए मुझे जरा. पी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दूं. पी हमेशा 1 में से माइनस होती है. वो टी होगी जो इससे पहले वाला कॉलम होता. देखिए ये वाला जो कॉलम है ना ये वैल्यू माइनस में हो सकती है. टी वैल्यू टी है. टी माइनस में. टी माइनस में क्यों है देख लें. ये मैं आपको बता दूं. फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू अगर माइनस में है तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू यू विल हैव दिस वैल्यू. तो अगर आपका एस्टिमेट माइनस में है ठीक है तो जब इससे डिवाइड होगा तो ये भी माइनस में आएगा. ठीक है. तो टी वैल्यू कैन बी इन माइनस. टी वैल्यू कब माइनस में होती है कि आपका एस्टिमेट माइनस में. ठीक है. चले टाइम हो गया हमारा. तो हमने आई होप वी लर्न समथिंग इसका. ठीक है. समझ में आ गया. हमने जो सीखा है इट्स वेरी वेरी इजी थिंग्स. We started with the concept with multiple regression versus structural equation modeling. Multiple regression में हमने एक की पॉइंट ये देखा है कि जब आपका आउटकम एक हो मल्टीपल रिग्रेशन यूज करते हैं. ठीक है. और जब आपके पास आउटकम मल्टीपल हो यानी किसी वेरिएबल का इफेक्ट इस पर हो फिर इसका इफेक्ट किसी और पर हो फिर इसका इफेक्ट किसी और. तो जब कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग हो या जनरेशन 2 मॉडलिंग देन वी नीड टू यूज स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग. स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को स्टेप बनाने के 2 स्टेप्स हैं. सबसे पहले ये डायग्राम आप यहाँ बनाते हैं और उसमें वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी चेक कर लेते हैं.
ठीक है, तीन ही चीजें उसके अंदर चेक करते हैं। सीआर की वैल्यू 0.7 से ऊपर होनी चाहिए, वैलिडिटी रिलायबिलिटी इंक्रीज करते हैं ना, ग्रेटर देन साइन। एवी की वैल्यू 0.5 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। एफएलसी की वैल्यूज में डायगोनल की वैल्यू तमाम उससे नीचे होनी चाहिए, और एचटीएमटी की तमाम वैल्यू ग्रीन में होनी चाहिए, ठीक है। ये चार चीजें हम चेक कर लेंगे, इसका मतलब स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आपको चेक करने कि इसका इफेक्ट है या नहीं है, खत्म हो गया। अभी डियर स्टूडेंट्स, आपके पास स्क्रीन पर कितने वेरिएबल्स हैं? अगर आप गौर से देखिए, हाउ मेनी वेरिएबल्स ऑन योर स्क्रीन? 1 2 3 4 एंड 5। 108 वेरिएबल्स पे हम काम कर चुके हैं, 108 वेरिएबल पे इतनी सी स्क्रीन पर। अब देख लें कितना ज्यादा स्मार्ट है, और इसकी स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं है, बेहतरीन स्मार्ट तरीके से काम करता है। दैट्स व्हाई व्हेन यू हैव अ कॉम्प्लेक्स मॉडल इन योर पीएचडी थीसिस और एमफिल थीसिस, दिस इज द फर्स्ट चॉइस। नहीं कर दिया? हाँ, मॉडल अगर चूज करने हो कि हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो हम कौन सा मॉडल इधर अप्लाई करें? मतलब जैसे आपने 94 बताया तो उसमें बहुत सारी अलग अलग वेरिएशंस जी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी हम कौन सा यूज करें? जी। ठीक है, सबसे पहली चीज है सीक असिस्टेंस फ्रॉम योर सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर याद रखें, पीएचडी के अंदर नोबेल प्राइज का काम नहीं करना है, सही, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग पे काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जल्दी से यहाँ देख लूँ, अगर सॉरी ये इंटरनेट पे नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना 76 टेम्पलेट्स हैं। देखिए, कभी कभार आप मॉडल इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। एक आईवी हो, एक डीवी हो, एक मॉडरेटर हो, ये मॉडल नंबर 1, ये बिल्कुल छोटे लेवल पर, ठीक है। आप इस तरह से भी एक मॉडल बना सकते हैं, ठीक है, विद आईवी डीवी सेम विद 2 मॉडरेटर्स, ठीक है। यू कैन हैव द सेम थिंग, आईवी डीवी मॉडरेटर, but this thing is again moderated by another variable, ठीक है। इस तरीके से आप करते चले जाएं। You can have this kind of model also, this variable, इसका इफेक्ट इस पर, इसका इफेक्ट, इसको मीडिएशन मॉडल कहीं लिखा हुआ भी होगा, दिस इज नोन एज मीडिएशन मॉडल। इसका मॉडल नंबर क्या है? 4। अब इसको आप देखते जाए, मैं आपको जरा सा एंड का एक कॉम्प्लेक्स मॉडल दिखाता हूँ। देखा आपने? यू कैन हैव दिस काइंड मॉडल आल्सो, IV, mediator, DV. This thing is moderated by this one, and this one is again moderated by this one, and this line is moderated by this one, and this line is again moderated by this one. This model is known as model number 47. अब मैं सबसे लास्ट मॉडल आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देखा आपने? अब आप कहेंगे सर इसको इस्तेमाल करना तो बहुत मुश्किल है, देख के एरोस देख ठीक के है। दिमाग में अच्छा, जैसे ही आप कहते हैं ना मुश्किल है, ये उतना ही आसान है। अब मैं एक सेकंड में आपको दिखा दूं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर मेरा नहीं पता कि अभी इन्होंने एक चीज इंस्टॉल की हुई है, नहीं है, एक सेकंड में आपको कर देता हूं। ठीक है, एक सेकंड के अंदर देखिए, मैं आपकी जिंदगी आसान बता देता हूं। ये देखिए जनाब, फर्ज करें यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन मॉडल नंबर, चलो इजी मॉडल पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडल नंबर 4 पे काम कर रहे हैं, मॉडल नंबर 4 पे, ठीक है। मेरे पास एक आईवी है, एक मीडिएटर है, एक डीवी, बिल्कुल इजी मॉडल पे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉडल? मॉडल नंबर 4। ये लिखा हुआ है मॉडल नंबर 4, उस हिसाब से चीजें, ठीक है। अब जो उसने कहा है आईवी की जगह आईवी, मीडिएटर की जगह बीडी, डीवी की जगह डीवी। फॉर एग्जांपल आप और से देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स। तो आपका जो वेरिएबल होगा एक्स, वो इस जगह पे जाए, उसको हम एक्स कहेंगे, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली जो डीवी होगा उसको हम क्या कहेंगे? वाई कहेंगे। जो मीडिएटर होगा उसको हम आई एम कहेंगे, ठीक है जी। अब इसमें जाके देख लें, ये क्या लिखा हुआ है? वाई। जो y हो वो y में रखिएगा, जो आपका x हो वो x में रखिएगा, जो मीडिएटर हो वो m में रखिएगा। ये करने के बाद ओके प्रेस कीजिएगा, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। आपने कहा नहीं सर मैं जरा सा, अब मुझे आपने एक चीज़ दिखा दी है ना,
अब मैं मॉडल 76 पे काम करूंगा, ठीक है। नाउ गो टू मॉडल नंबर 76। अब ये देख लें, एक है एक्स, वाई और एम, तीन चीजें पता थी। जी सर। अगर दो चीजें आपको और पता चल जाए जिंदगी आसान। डब्ल्यू एन जेड, ढूंढ ले कहीं डब्ल्यू और जेड लिखा हुआ है। मिल गया। W तो जो आपका डब्ल्यू है वो डब्ल्यू में डाल दें, जो जेड है जेड में डाल दें, ओके प्रेस कर दें। ये इसने आराम से आपका ये वाला मॉडल अप्लाई कर दिया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, ये जो फाइल्स मैंने की हैं आप मैं काम करूंगा कि डॉक्टर किरण हाशमी को मैं ईमेल्स कर दूंगा। कौन सी फाइल्स हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, मैंने जिस डेटा सेट पे काम किया है वो डेटा सेट मैं आपको उनसे शेयर कर लूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको। मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास है और ईमेल एड्रेस भी पास है, ठीक है, आप उससे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी।